Good evening, dear students. So today we will discuss conic section. In conic section, the first part is parabola. The previous circle already we have done. That is also a part of conic section. So this in this segment we'll discuss the parabola. Now first of all we have to understand the meaning of this conic section. What is conic section? See, for this we say a conic section or section is defined as the locus of the point P in a plane. Let's say there is a point in a plane P, xy, fine. There is a point P in a plane such that the ratio of the distance of P from a fixed point, let's say from a fixed point is this, and to its distance from a fixed line, and this distance from a fixed line, this straight line it is. So this ratio, this fixed point I took S, and this is P and this is M. So this ratio is known as this SP upon PM, SP upon PM, this SP upon PM. This distance, ratio of this distance, SP upon PM, we call it as a eccentricity, which is E. So conic section, how we define? So conic section or conic, you can say the locus of a point this P in a plane such that the ratio of the distance from a fixed point, this is fixed point I took, this S, and to the its distance from fixed straight line, this is one straight line here, ठीक है, this is PM. तो ये जो रेशियो है SP अपॉन PM, ये रेशियो को ही हम कॉनिक कहते हैं. और ये जो फिक्स पॉइंट है दैट बिकम्स अ फोकस ऑफ द कॉनिक, दिस इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉनिक. और ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक, करेक्ट. सो ये कॉनिक सेक्शन SP अपॉन PM विच केम E, एंड E इज नोन टू बी एसेंट्रिसिटी. इसको हमने एसेंट्रिसिटी बोला है, इसका नाम मैथमेटिशियन ने एसेंट्रिसिटी रखा है, ठीक है. ये क्या है बेसिकली? इट इज अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम S टू P एंड P टू M, और यू कैन से PS अपॉन PM, फाइन. सो आई बिलीव कॉनिक सेक्शन डेफिनेशन इज क्लियर. कॉनिक होता क्या है? एनी फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, एनी पॉइंट इन अ प्लेन टू एनी फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, दिस डिस्टेंस, एंड टू its fixed distance from a one fixed straight line PM. SP upon PM is E, that is known as also eccentricity. तो ये जो P पॉइंट से लोकस तैयार होगी दैट बिकम्स अ कॉनिक सेक्शन, करेक्ट. इसको थोड़ा और ड्रिल करें आप तो वो डबल इन्वर्टेड कोन में प्लेन इंटरसेक्ट करके कई सेक्शन निकलते हैं, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला. सो दिस वे वी कम टू नो दोज शेप्स. अब इस SP अपॉन PM को थोड़ा हम एलोबरेट करेंगे. दिस SP, लुक एट दिस, SP अपॉन PM विच इज नथिंग बट E वी सेड. सो ये हमारा क्या है? एसेंट्रिसिटी. अगर इफ दिस E इज इक्वल टू 1, E इज 1 इफ इट इज, दिस कॉनिक सेक्शन इज नोन एज पैराबोला, ठीक है. कॉनिक सेक्शन को क्या बोल देंगे आप? पैराबोला, ठीक है. पैराबोला इट इज when E is 1, correct. When dear this E is greater than 0 and less than 1, sorry, not equal to, less than 1, this becomes ellipse. E की value, that is eccentricity की value, in fact the ratio of SP upon PM. And third case is when E greater than 1, we say hyperbola. Eccentricity greater than 1 होगा, then we can say the conic is hyperbola, ठीक है. तो ये हमारे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ E, दिस पैराबोला, ellipse and hyperbola, we came to know the shapes. Means this conic will form parabola, ellipse, hyperbola depending upon the value of E. E equals to 1 parabola, E less than 1 ellipse, greater than 0, and E greater than 1 is hyperbola. Fine here.
Now we will move to parabola. What is parabola? In this section, we'll discuss what is parabola. So how we will define now parabola? Once we came to know E equals to 1, then how we will define parabola? So we can say a parabola is parabola is the locus of the point of in fact point in a plane equidistant from a fixed point like यहाँ पे S है हमारा दिख रहा है ये फिक्स पॉइंट S is fixed point and a fixed line fixed line ये दिख रहा है डियर अपने को ये this is fixed line straight line in that plane. A parabola is the locus of the point in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line in that plane. Correct. The fixed point is called, this fixed point we called focus, and this fixed line we call it as a directrix. Correct. So in parabola geometrically क्या दिखता है अपने को? SP equals to PM. ठीक है. Since E is equal to 1, we came to know that in parabola E equals to 1. So this distance, that is why we have mentioned equidistant. Look at this here. What we have written? Plane equidistance from a fixed point and a fixed line. And that fixed line is known as directrix and fixed point is known as focus. And geometrically it is SP equals to PM. Fine. So P is any point on the plane. To the fixed point, this SP, and to the distance from a fixed line, which is PM. So SP upon PM, if is equal to, or you can say SP upon PM is 1, then this locus is known as parabola. Correct? Now, we will form the locus SP upon PM we came to know. Now we will get the equation of the parabola. How we will get the equation of the parabola? Equation of parabola we will discuss now. Equation of parabola and how it looks and what is the locus. Since we came to know that this is what fixed point, correct? This is S, this is any point on the plane PXY, and this is a straight line and this distance is M. Fine. So now we have to form the equation of parabola. So this line what we have taken, this straight line, correct? This is straight line and S is any fixed point. So this we kept it in Cartesian system where we have taken this fixed point on x-axis, correct? On x-axis. So let's say this point is a comma 0. This is your distance 0 comma 0, right? And this distance, let's say you write mn. So ON, this is O. ON equals to OS. This is what understanding between coordinate system and to this geometry. ON equals to OS. So this is A and this line it becomes x equals to minus A. That fixed line x equals to minus A. See dear, ये axis है या y axis है, y axis and this is y dash. ठीक है? Now this distance SP and PM it is there. We took P any point on the plane XY. So let PXY be any point on the plane. Any point on a plane. Correct? Then we have fixed point S we took, which is a comma 0
on x-axis, which is fixed point, and that is also known as focus of the parabola. This is fixed point. Now, according to geometry, what it is saying, SP equals to PM. Fine. So now we'll get the distance of SP, and also we came to know that this line, that straight line, fixed line, which we have taken, let's say MN, a fixed straight line. What is the equation of this? X equals to minus A. Fine. This is what we call as a directrix. So x equals to minus A, which is parallel to y-axis. So that Mn is x equals to minus A. Now we'll calculate SP. So distance formula we will use root under x minus A square plus y minus 0 square. Fine. Because coordinate of S is A comma 0 and P is xy, and PM. PM is nothing but perpendicular distance from P to this Mn line. This is perpendicular distance. So x equals to minus A is the line and point is xy. So this is x1, that is x, and y1 it is 0, and plus A will left upon root under line is x plus A only, x plus A equals to 0. So what is the coefficient of x and y? 1, y is 0. So this came. Now this came SP equals to PM. So distance formula we have applied. Now we will square both sides. Squaring both sides. We will square now. So after squaring, look at this. What will the situation? This will come. Now I am expanding this inside also. X square plus A square minus 2AX plus Y square is equals to x square plus A square plus 2AX. Fine. So at the end, what we have observed that y square equals to 4AX appeared. Fine. So the geometry what we have chosen, SP equals to PM, this gave us this equation, y square 4AX. Now mathematician, once they got this algebraic expression, y square equals to 4AX, and then they start putting the values 0, 1, 2, 3, and they plot the graph. Now the graph looks like, look at this. The graph, it came that it passes through P and it passes through the origin and goes like this way. Fine. So this shape, it becomes, once the equation they found, पहले उन्होंने इक्वेशन निकाला, ये लोकस तैयार किया ज्योमेट्रिकली, और जब उसके बाद उन्होंने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किए, पॉइंट निकाले, ग्राफ बनाए, तो ये शेप निकल के आया, और इस शेप को मैथमेटिशियन ने नाम दिया पैराबोला. दिस इज पैराबोला, और ये ओरिजिन पे टच करती है, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स भी कहते हैं. ठीक है. दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ठीक है. दिस फिक्स पॉइंट जो मैंने A, 0 लिया, ठीक है, दिस S, दैट इज नोन एज फोकस. ठीक है. और भी डिटेल में हम डील करेंगे. तो हमने अभी क्या देखा डियर, वी हैव फॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि जो ज्योमेट्री हमें मिली कॉनिक सेक्शन से, कि पैराबोला होता क्या है, कि अ पैराबोला इज अ locus of the point in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line. Correct. So we have fixed point and we have fixed line Mn. तो ये ज्योमेट्री से मुझे SP equals to PM मिली, और तब हमने SP equals to PM की ज्योमेट्री से we got the equation y square equals to 4AX. That is what evolution of parabola. इन कह सकते हैं आप मैथमेटिक्स वर्ल्ड में पैराबोला इस तरह से एंटर हुआ इन आवर मैथमेटिक्स वर्ल्ड. ठीक है. सो यहाँ पे सिचुएशन ये है डियर कि ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में मैंने फिक्स्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस पे लिया. ठीक है. अब मैं OX डैश पार्ट पे भी फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ. OX डैश x जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे भी मैं फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ. मैं y एक्सिस पे भी फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ, और y डैश एक्सिस पे भी फिक्स पॉइंट ले सकता हूँ. सो डिपेंडिंग दीज 4 इंफॉर्मेशन, वन वी हैव टेकन इन x एक्सिस, तो रिमेनिंग जो 3 सिचुएशन है जहाँ पे
ओ एक्स डैश पे लेने पे, वाई डैश पे लेने पे, वाई पे लेने पे, वी विल गेट अनदर 3 शेप्स. तो तीसरे वो शेप्स को कैसे दिखेंगे? लुक एट दिस. दिस इज एक्सिस, दिस इज व्हाट पैराबोला, जिसका फिक्स पॉइंट हमने यहां ले लिया डियर, विच इज -a,0, एंड दिस इज वन फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो यहां से एस पी और ये पी एम. दिस इज पी एक्स वाई एनी पॉइंट. ठीक है. और दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डायरेक्ट्रिक्स बोला हमने इसका नाम, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. सो एंड दिस इज फिक्स पॉइंट एस -a,0. सो इस ग्राफ, ये ग्राफ बेसिकली हमें पैराबोला के ज्योमेट्री एस पी इक्वल्स टू पी एम से ही आई, बट वो हमने फिक्स पॉइंट ऑन एक्स डैश पे लिया, लेफ्ट हैंड पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पे. ये कौन सा है? एक्स डैश है. ठीक है. एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन, एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई डैश है ये, और ऊपर वाला अपना वाई. करेक्ट. तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, another form of parabola we got. Similarly, when we took the fixed point on y axis, ठीक है, यहां फिक्स पॉइंट लिया, तो ये s, इसका कोऑर्डिनेट 0, b हो गया डियर. दिस इज सम पॉइंट p, लेट्स से एक्स वाई, एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन, दिस इज pm. करेक्ट. दिस इज ऑरिजिन 0, 0. सो ये ज्योमेट्री ने हमें पैराबोला का ये फॉर्म दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by. करेक्ट. दिस केम x square equals to 4by, and everywhere the same geometry, sp equals to pm. Correct. And finally, when we took the fixed point on y dash, पे जब हमने fixed point लिया, so the parabola looks like this. Let's say this is what s, where 0, -b, and this is p, and this distance, this is pm. ये स्ट्रेट लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएगा. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स. फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. ऑलवेज रिमेंबर, फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस, एंड दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स. करेक्ट. तो एस पी और ये पी एम. सो यहां से अपने को इस ज्योमेट्री से, व्हेन वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, वी केम टू नो दिस शेप और दिस लोकस इट अपीयर्ड. सो आप ये कह सकते हैं कि पहले ये लोकस इक्वेशन आया, एंड देन वी हैव दिस शेप अपीयर्ड. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 4 शेप्स ऑफ पैराबोला वी हैव सीन. द ज्योमेट्री, a parabola is the locus of the point in a plane which is equidistant from the fixed point and a fixed line, where sp equals to pm. अब वो फिक्स्ड पॉइंट को हमें हर एक चारों एक्सिस पे रख के हमने ये इक्वेशन फॉर्म की. ठीक है. And then we got the graph. So this is what parabola opens in first and fourth quadrant. Correct. Then second graph, we have took y square -4x, where parabola opens in second and third quadrant. Then we have third parabola where we took a fixed point on y axis. Parabola opens in first and second quadrant. And finally, when we took the fixed point on y dash 0, -p, then we have parabola x square equals to -4by. Fine dear. अब इनमें सभी के कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, जिस कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एंड एवरीवन नोज दोज चार्ट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. तो आप उस चार्ट को याद रख सकते हैं, या मैं यहाँ पे जो बताऊंगा उससे भी आपको याद हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. तो एक बार मैं फिर से पैराबोला का एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, एंड देन विल डिस्कस देयर inside what are the information is available. ठीक है. Now look at this. So these 4 shapes, I believe all of you understood their equations. X square 4by, y square -4ax, and x square -4by. Now dear, अब हम इस पैराबोला के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं. पहला मैं ले रहा हूँ y square equals to 4ax. ठीक है. दिस a इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ की थी.
look at this. This is what parabola, where I took this as a comma 0. This is S, and any point on the parabola P, and this is what फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये डियर यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको सीधा रखिए. ठीक है, वो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस डियर, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जा रहा है. क्लियर? सो नाउ दिस इज योर y डैश, दिस इज x, and this is x dash, and this is your y axis. ठीक है, and this is what origin 0, 0, and this one PM, this, and this is what directrix. This is fixed straight line, and I told you this distance is equal to this distance. ये ज्योमेट्री है. सो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा डियर? x इक्वल्स टू -a. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया, इसको हम कहते हैं फोकस. सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ दिस शेप y² इक्वल्स टू 4ax is what? Focus is 0, a comma 0. ठीक है, this is known as focus a comma 0. ठीक है, now next is this a fixed straight line. This fixed straight line is known as directrix. So equation of directrix याद रखना होता है अपने को. So which is x plus a equals to 0 here. Correct? Equation of directrix of this form y² equals to 4x is x plus a equals to 0. Now dear, ये जो SP लेंथ है और ये लेंथ, ये दोनों इक्वल होती है. SP और इसको मैं अगर Q कर दूं, बिकॉज ये जो पैराबोला ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस होती है. ठीक है, अबाउट एक्सिस मीन्स जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा. दिख नहीं रहा है बट इट इज सेम ऑलवेज. तो SP इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस SQ इज सेम ड्यू टू सिमेट्री. ठीक है, ये सेम होती है डिस्टेंस. तो हमें SP का डिस्टेंस कितना पता है? लुक एट दिस. तो SP इज PM. पहली बात समझ लें आप, SP इक्वल्स टू PM. इसी ज्योमेट्री से कॉनिक्स पैराबोला तैयार हुआ डियर. PM की लेंथ क्या है? PM की लेंथ O से P, अगर ये लेंथ देखें तो A है और ये भी लेंथ भी A है, तो PM इज 2A. सो SP इज ऑल्सो 2A. सो SP और PM की लेंथ क्या हो गई? 2A. सो ये SP इज 2A एंड दिस इज 2A. करेक्ट? तो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 4A. इस लेंथ को लेटस रेक्टम कहते हैं. दिस लेंथ PQ जो है, दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला. लेटस रेक्टम विच इज PQ. लेंथ क्या होगी इसकी? 4. इट्स अ लेंथ डियर. फाइन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम PQ. करेक्ट? सो दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम. ये रेक्टम होता है, जैसे गले में रेक्टा होता है. आप जितना गला खोलेंगे उतना ही खुल सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं खोल सकते हैं. तो पैराबोला के हर पैराबोला को अपनी रेक्टा होती है. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी डियर? दिस इज 4A. दैट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इज दिस वी कॉल एक्सट्रीमिटीज ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ P. मीन्स एंड पॉइंट्स ऑफ P भी कहते हैं. यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन के लिए हुआ. फोकस डन, a, 0. डायरेक्ट्रिक्स इज डन, x plus a equals to 0. Length of latus rectum 4A. Now we'll discuss some more thing in components in this. ये अगर मैंने एक S से कोई डिस्टेंस ले लिया SL, ठीक है, इसको फोकल डिस्टेंस कहते हैं. फोकल डिस्टेंस, फोकस से पैराबोला पे कहीं पे जो डिस्टेंस होगी, दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस. करेक्ट? दिस आई हैव टुक लेट्स से SL. ये होता है डियर, फोकल डिस्टेंस इज x plus a. इस पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax के लिए. फिर दूसरे शेप में चेंज हो जाएगा डियर. ठीक है, नाउ सो दिस इज डिस्टेंस x, यानी ये x कोऑर्डिनेट होगा और a एक आपकी ये जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट a है, तो x plus a, या कई बुक में x1 plus a भी लिखी होती है. दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस. ठीक है, आइडिया. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट में. दिस इज फोकल डिस्टेंस.
अब इस लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स है, दिस इज पी का कोऑर्डिनेट होगा कुछ, हमने जैसे एक्स वाई लिख दिया था, ठीक है। तो इस एक्स वाई का कोऑर्डिनेट और इस क्यू का कोऑर्डिनेट, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। सो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, करेक्ट। तो ये पॉइंट जो होते हैं, पी वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा डियर, पी का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा 2a, और q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डियर, a कॉमा -2a, ठीक है। सी दिस 2a इज y एक्सिस और a इज योर x पार्ट, ठीक है। सो a कॉमा 2a एंड a कॉमा -2a, दैट इज एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस शेप y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। सो डियर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। इन सब की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, अगर एसेंट्रिसिटी पैराबोला की पूछी जाए तो दैट इज 1, करेक्ट, क्लियर। सो ये पैराबोला के बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतने आपको याद रहने चाहिए। यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 होगा इस फॉर्म में। व्हाट इज वर्टेक्स देन, वर्टेक्स इज 0 0 ओरिजिन, दिस इज वर्टेक्स। फोकस का हमने कोऑर्डिनेट a, 0 लिख दिया। So these are few important points that you have to remember, correct? Then the equation of directrix also we have mentioned, right? अब कभी कभी पूछता है कि what is the equation of axis, तो equation of axis यहाँ पे क्या आ गया, ये फोकस कहाँ लाइज कर रही है, x एक्सिस पे, तो y इक्वल्स टू 0 यू कैन से, ठीक है ना। कभी कभी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम आपको x इक्वल्स टू प्लस ए दिख रहा है, x इक्वल्स टू ए दिख रहा है, अगर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछा, ठीक है। So these basic information that you have to remember. So we have discussed only this y square equals to 4ax. Now we have another 3 shapes are there. उनके लिए भी सब कुछ इसी तरह से होगा, और आई बिलीव आप उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। फोकस चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ठीक है ना। तो उसको आप एक ऐसे में एक चार्ट बना के प्रेजेंट कर दूँ तो कई बच्चों को क्लियर हो जाता है। लेट्स से फटाफट लिख दें हम। पहला शेप ले लिया हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। दूसरा ले लिया y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, करेक्ट। थर्ड शेप x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, we came to know the which type of shape it is, and x स्क्वायर इक्वल्स टू -4by, ठीक है। अब इन सभी के इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। पहला अगर मैं फोकस लिखूं, फोकस, तो ये क्या है डियर, a, 0, ठीक है। यहाँ क्या डियर है, -a, 0, इसके अंदर क्या आएगा, 0, b, एंड दिस इज 0, -b। वर्टेक्स सबके सेम होंगे, वर्टेक्स इज सबके 0 0 हैं, 0 0, क्लियर, वर्टेक्स इज 0 0। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, so ये 4a है, this is also 4a, and this I have taken b as a fixed point लिया है 0, b, तो इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4b you have to take, and here also 4b, ठीक है। ये मेजरली वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। देन यू हैव देयर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या था डियर हमारा, x प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू -a था, और ये x प्लस ए है तो ये x माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा डियर, x स्क्वायर 4by, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका ऑन y एक्सिस दिखेगा। सो y इक्वल्स टू -b, दैट मीन्स y प्लस b इक्वल्स टू 0, एंड हियर इट इज y माइनस b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर आपके और भी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होंगे, जैसे फोकल लेंथ की बात थी, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फोकल लेंथ x इक्वल्स टू x प्लस a1, x1 प्लस a कर दीजिए, या x इक्वल्स टू -a1 भी कर सकते हैं, x1 प्लस a। यहाँ पे डियर y स्क्वायर -4x में x1 माइनस a, यहाँ क्या हो जाएगा दूसरे वाले में, y प्लस b कर दीजिए, ये भी सेम है, फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ,
और ये y माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेजरली इन सब को ही ध्यान में आप लर्न रखते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, जो भी थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को इस कोऑर्डिनेट को। लुक एट दिस, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, जिनके जो कोऑर्डिनेट है। पहला क्या था डियर, यहाँ पे a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a, वाई स्क्वायर 4ax का। यहाँ माइनस वाले में क्या हो गया, माइनस a कॉमा 2a, करेक्ट, एंड माइनस a कॉमा माइनस 2a। ठीक है, ये वाई स्क्वायर माइनस 4ax के लिए। एक्स स्क्वायर 4by के लिए क्या दिखेगा डियर, 2b कॉमा b, 2b कॉमा b एंड माइनस 2b कॉमा b। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 4by के लिए। और एक्स स्क्वायर माइनस 4by के लिए एंड पॉइंट आएगा डियर 2b कॉमा माइनस b, 2b कॉमा माइनस b एंड माइनस 2b कॉमा माइनस b। ठीक है, सो दीज आर इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट चारों पैराबोला शेप्स में। ठीक है, कई बच्चों को याद भी है पैराबोला शेप्स, अगर आप समझ जाते हो तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगानी होती। ठीक है, अब डियर यहाँ पे ये पैराबोलास के जो ये हमने बेसिक शेप्स डिस्कस किए, इसकी सारे इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। और एनडीए में डियर पैराबोला के प्रॉब्लम्स टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड पे नहीं होते हैं। मैक्स टू मैक्स जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल और बाकी की जो और इन्फॉर्मेशन है वो हमें पैराबोला में ड्रिल नहीं करना है, ना तो इलिप्स ना ही पैराबोला हाइपरबोला में। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल देयर इज नो वे, देयर इज नो कनेक्शन इन एनडीए, बिल्कुल ही नहीं कनेक्ट करना है आपको टेंजेंट नॉर्मल इन पैराबोला में, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों में ही। सर्कल में इट कम्स, सर्कल में टेंजेंसी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल इट यूज टू बी, बट इन बाकी के ये जो तीन शेप्स हैं कॉनिक्स के, इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं डियर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं। लुक एट दिस, जो इंपॉर्टेंट भी अपने को ध्यान रखना होता है। पैरामेट्रिक हमने डिस्कस भी किया, पैरामेट्रिक का रूल क्या है, इट कैन बी एनीवेयर यू कैन टेक पैरामेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। For y square equals to 4ax, we generally take x for y square equals to 4ax, we take parametric equation, in fact parametric coordinate जो होता है वो x equals to 80 square and y equals to 280, where t is parameter, correct, t is a parameter। ठीक है, so ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सी बाकी के भी होते हैं बट आप इसका ही ध्यान रखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। इसके जो t ये पैरामीटर है, तो पैरामीटर में भी एक कनेक्शन होता है, वो भी एनडीए के लिए जरूरत है, याद रखिए। इसको अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जो फोकल कॉर्ड आपका अगर है, दो एंड पॉइंट्स हैं, एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला, तो उनके बीच अगर मैं रिलेशन बनाऊं, तो अगर सपोज इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। सो दिस इज पैराबोला डियर, ठीक है, दिस इज एस पी, दिस इज पी एस, और ये आपका क्यू ले लो, ये एस है, ए कॉमा 0। तो यहाँ का जो पैरामीट्रिक अगर मैंने लिया है 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है, और इस क्यू को ले लिया मैंने 80, यहाँ 81 लिख दो आप, 81 स्क्वायर 281, और इसको ले लो 82 स्क्वायर कॉमा 282। तो ये जो T1 T2 जो दो पैरामीटर्स आए हैं, इनके बीच भी रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन बिल्कुल आपको याद रखना है। द रिलेशन इज T1 इंटू T2 इज -1। ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट ईदर T1 और T2 इन टर्म्स ऑफ, करेक्ट। सो व्हाट यू कैन राइट, आप T2 को ये भी लिख सकते हैं -1 अपॉन T1। लुक एट दिस,
T2 को what we can write माइनस 1 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये जो पैरामीट्रिक, अगर T1 एक पैरामीटर है तो यू विल कम टू नो द अदर कोऑर्डिनेट के भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पता कर लोगे। किस रिलेशन से? वी हैव फ्रॉम दिस रिलेशन T1 T2 इक्वल्स टू -1। तो ये पैरामीट्रिक रिलेशन पॉइंट जो है टी पैरामीटर का, उनके बीच का ये रिलेशन होता है। सो यू मस्ट टू नो, ठीक है। व्हाट आई एलॉबरेटेड, आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि मैं T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 में भी लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे एक पैरामीटर T1 पता है, सो यू कैन गेट द अनदर कोऑर्डिनेट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, फाइन। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, that also you have to remember. Very few question it generally comes. Fine. Now we will discuss general equation of a parabola. That is very, very important for NDA. Most of the problems come from general equation of a parabola. Look at this. Now we'll discuss general equation of parabola. See, all of we aware the equation of conic. हमने definition तो conic का किया, conic section का. So second degree equation जो है that is conic. इनका locus क्या है dear? All of you know second degree homogeneous equation. Pair of straight line आपने देखा, x square fine ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is what we call general equation of a conic. ये कॉनिक का जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री। इनसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ऑल शेप्स आर कमिंग फ्रॉम दिस जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ठीक है। नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस डियर, दिस कॉनिक विल रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है। सो इफ द अबव कॉनिक, दिस कॉनिक विल रिप्रेजेंट पैराबोला इफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, फाइन, ये होना चाहिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। एसेंट्रिसिटी 1 तो होती है, और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेल्टा, जिसको आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में करते थे, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। व्हाट वाज दैट डेल्टा? वो आपने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, जानते हो, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, ठीक है। ये क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एंड डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0। दीज टू इंफॉर्मेशन, एंड एट लास्ट मैंने क्या बोला है? ई इक्वल्स टू 1। ये तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है E1, बट ई इक्वल्स टू 1 ऑल्सो, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से दिस कॉनिक विल रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है। पैराबोला तभी होगा व्हेन दीज टू कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, ठीक है। कौन? ये कॉनिक इक्वेशन, ये कॉनिक पैराबोला तभी बनेगी जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, एंड डेल्टा कंप्राइजेज, लुक एट द कोफिशिएंट्स ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, ठीक है ना। ये आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा हुआ है। ये अगर 0 हो जाएगा तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। सर्किल होने के लिए भी नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। कॉनिक्स के जो 4 शेप्स हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ऑल 4 शेप्स डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम conic we came to know that any second degree equation will represent parabola if h square equals to ab and delta not equal to 0, correct. Now we will discuss, I was telling that general equation of parabola, उसके लिए फॉर्मेशन जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि अब इक्वेशन हमें एसपी और पी फोकस और ये दी हुई है, तो कैसे हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम डियर, लुक एट दिस। See, the question is, find the equation of parabola whose focus is the point 0 0, focus कह रहा है 0 0, ठीक है। जनरली फोकस आपका a, 0 दिखता था, कोई नंबर, 0 या -a, 0,
या 0, b। तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए जिसकी फोकस है 0, 0, ठीक है, एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, दैट इज स्ट्रेट लाइन विच इज गिवन 3x minus 4y plus 2 equals to 0। तब अपने को इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए। सो हम थोड़े इसको हम ड्रॉ करके देखिए कैसा दिखेगा डियर। ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट P है एक्स वाई ऑन द प्लेन, और फोकस हमारा दिस इज S जो कह रहा है 0, 0, एंड दिस इज योर M, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, दैट इज 3x minus 4y plus 2 equals to 0। Now we have to form the equation of parabola। ये हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है डियर। सो नाउ अब इंफॉर्मेशन से लुक एट दिस, फोकस 0, 0, सो अगेन वो नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में नहीं होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, दिस इज अ लाइन 3x minus 4y plus 2, 0, दैट ऑल्सो वोंट बी इन द फॉर्म ऑफ जनरल पैराबोला जो हमने देखा था y square 4ax। तो दिस जो ये पैराबोला फॉर्म होगा दैट इज व्हाट अ जनरल इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है ना। वो y square 4ax में नहीं सही पाएगा, ना तो x square 4by में। So how we will proceed, how we will get the equation of parabola? So now look at this. We know the geometry since SP and PM and we have to find the parabola equation of parabola. तो geometry क्या कहता है dear? Geometry is SP equals to E into PM, but it is E is 1 here since it is parabola. SP equals to PM. So now SP equals to PM तो निकाल लें distance। तो ये हमने एक्स वाई लिया हुआ P, तो x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, इसका डिस्टेंस है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। PM डिस्टेंस निकाल लें आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AX1 दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 2 बिकॉज x1 y1 इज सेम एज xy एंड अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज 9 प्लस 16, correct? This came with the help of geometry, SP equals to PM. Now we will square and we'll simplify this. So after squaring this, look at this. This will be x square plus y square. इस साइड को भी स्क्वायर की जाएगी, that is 3x minus 4y plus 2 whole square, and in denominator left with 25 after squaring, correct? When we squared both sides. अब देयर इसको सिंप्लीफाई करके हम फाइनल आंसर को कैलकुलेट करें अगर, सो लुक एट दिस व्हाट विल कम। सो दिस इज गोइंग टू बी, पूरी इनटू कर देने के बाद इस होल a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी ब्रेक कर दोगे आप, तो हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज 16x स्क्वायर। ये आप जरूर चेक करेंगे हाँ, इनटू करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, plus it is 24xy, fine, minus 12x and plus 16y minus 4 equals to 0. So this is the required equation of the parabola. When you have focus is 0, 0, directrix is this line, then what is going to be the equation? Equation of the parabola general, ये बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया डियर, ये आ गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब अगर अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इक्वेशन पैराबोला शो करता है, सो व्हाट यू विल डू, आप कंपेयर करके एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी शो कर लेंगे। अगर ये इक्वल हो गया सो द अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ठीक है। बट दे हैव सेड दैट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये 100% पैराबोला ही होगा, ठीक है। So this way we have general equation of parabola we can calculate. Fine dear. So I believe you all of you understood this problem. When you have focus 0, 0, directrix is given, then equation of parabola this way we can calculate. बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वो आपको सारे याद रखने ही हैं, जो भी बात हुई, ये कॉनिक का जनरल इक्वेशन,
पैराबोला कब होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म, फाइन. एंड दीज 4 शेप्स के सारे इंफॉर्मेशन यू मस्ट टू रिमेंबर. फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, स्टैंडर्ड 4 जो हमारे फॉर्म्स थे. हाँ, चारों फॉर्म के हमने डायग्राम भी क्लियर किए थे. हियर वी हैव सीन हाउ यू गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दोज इंफॉर्मेशन, कौन सा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है डेयर. एंड वी हैव डिस्कस दोज 4 शेप्स ऑल्सो, चारों शेप्स कैसे दिखेंगे, फाइन. एंड यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑल्सो भी elaborated, correct. And then we came to know the definition of parabola also, fine. And then we discuss about conic section. What is conic section? A conic section is the locus of a point in a plane such that a fixed point in a plane to the fixed straight line, the ratio of those distance is constant, is known as conic section, fine. So I believe इतने basic information सभी बच्चों को पता भी है. एक बार मैंने रिकैप कर दिया है एवरीथिंग, ठीक है. अब आप इस पे प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व करेंगे, सो देन विल फाइन, पैरामीट्रिक हो या और भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना हो, सो विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स नाउ, ठीक है. लुक एट दिस, आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम हियर. फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला चाहिए. पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ऑप्शंस दिए हुए हैं डियर. ऑप्शंस में हमारे पास है 3/4, 5/4, 0. Then we have 0, 0, this is 5/4, and then we have 1/3, 1 and so on. These are options, ठीक है. फोकस ऑफ द पैराबोला चाहिए डियर. सो हाउ वी विल प्रोसीड. सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप देखिए जनरल इक्वेशन में है. तो हमने करना क्या है, इसको, इस जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है. दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसको एक टर्म में लिखेंगे. रिमेनिंग आप यू टेक इन द दिस साइड, सो दिस बिकम x माइनस 2. अब मैं यहाँ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करता हूँ. वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, दिस इज 2 इंटू वाई. तो b शुड बी 1, b स्क्वायर कर देंगे तो इतना माइनस भी करना होगा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू x माइनस 2. सो यहाँ तक हो गया डियर y माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये -1 इधर आ गया डियर, तो दिस बिकम्स x माइनस 1, ठीक है. y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1. अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ये y स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल से लेता हूँ, ठीक है. 4 इंटू ए, ठीक है, ए को मैं अभी ब्लैंक रखता हूँ, 4 इंटू ए, और इंटू एक्स हमारा हो गया ये कैपिटल एक्स, ठीक है. अब यहाँ पे डियर x माइनस 1 है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे a को 1 कर रहा हूँ और ये x, ठीक है. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 4ax. a हमारा 1 है, वेयर y इज y माइनस 1 एंड x इज, जो कैपिटल x लिया हमने वो क्या है, x माइनस 1, ठीक है. अब मैं इस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू ये 4ax तैयार किया है, इसी स्टैंडर्ड से हम वो सारे इंफॉर्मेशन जो अपने को चार्ट में मिली हुई है उससे पता करेंगे. तो ये इक्वेशन को, ये जो हमने रिड्यूस किया, ट्रांसफॉर्म किया कैपिटल Y और कैपिटल X में, इनका फोकस अगर मैं बात करूं तो फोकस इसका क्या होगा डियर, फोकस इज गोइंग टू बी a, 0, ठीक है. a, 0 होगा इस स्टैंडर्ड का. बट ये a जो है वो x कोऑर्डिनेट एंड y 0 इज y कोऑर्डिनेट. सो जब a, 0 हुआ, दैट इज a इक्वल्स टू हमारा x कोऑर्डिनेट है. तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिया हुआ डियर, कैपिटल X इज a हियर एंड कैपिटल Y इज 0 हियर. दिस वी विल राइट फर्स्ट, ठीक है. ये मीनिंग हुआ a, 0 का. ये x एक्सिस हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, एंड कैपिटल Y कोऑर्डिनेट इज 0. बट कैपिटल X क्या है हमारे पास, x माइनस 1. सो नाउ x माइनस 1
and a is what? A we came to know 1. ठीक है, a is 1 here. So x minus 1 equals to 1. So therefore x becomes what? 2. Or y equals to 0, that is y, capital Y we have taken, y minus 1. So y minus 1 is what? 0. So y equals to 1. ठीक है, so हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया फोकस का डियर? आई विल राइट हियर नाउ. So coordinate of focus of this given parabola is going to be, what is this? X equals to 2 and y equals to 1. 2 comma 1 is the focus. तो यहाँ पे none of these will be the answer. ठीक है, understood here? I believe this part all of you understood. जनरल इक्वेशन कंपेयर करना है आपको, कैसे कैसे करना देख लो एक बार. पहले आपने ये पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाया, y कैपिटल वाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू एक्स, वेयर कैपिटल y इज y माइनस 1. ठीक है, दिस इज y माइनस 1 एंड कैपिटल x इज स्मॉल x माइनस 1. a we have 1. now we compare to the, we went to the standard equation form में. तो फोकस इसका क्या होगा? a कॉमा 0 and a is your capital X, x coordinate ये हुआ a and this is y coordinate. ठीक है, so x minus 1 is 1 because a is 1 and y equals to 0 and y equals to 0 is y minus 1 equals to 0, so y equals to 1. So x equals to 2 and y equals to 1. This coordinate came and which is a coordinate of focus. ठीक है, so this way we can calculate the focus of the parabola. See, basic parabola का everyone can get, बट ये फॉर्मेट जो है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट विद दिस मेथड. और ये एनडीए की क्वेश्चन में जरूर रहता है डियर. ठीक है, सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो डियर वी विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स इन पैराबोला. फाइन, सो ऑल ऑफ यू गो थ्रू दिस फर्स्ट वीडियो and in second video we'll discuss some more problems in parabola. So meanwhile go through this video, all the basic information what we have discussed. ठीक है, गुड, अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए, बहुत सिंपल है पैराबोला, ऑल ऑफ यू नो. और एनडीए के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर. एनडीए में आप कॉनिक सेक्शन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही जाएगा. ठीक है, जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, बिकॉज आई यूज टू टीच दिस कॉनिक सेक्शन इन एनडीए. तो बेसिक बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होती थी, कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता होती थी. तो ये सब प्रिपेयर होके जाएंगे. तो आप तो पहले रिटर्न निकालेंगे एंड रिटर्न के बाद वहाँ जाएंगे तो वहाँ लेक्चरर से ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे फिर से. ठीक है, सो गो थ्रू दिस.